Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. After completing writing skill 3.3 email writing, let's move on to our next chapter, prose chapter we will take, that is 1.4 Pillars of Democracy, written by B.R. Ambedkar. Pillars we all know. Pillars मतलब क्या होता है? You can see the picture and understand it is something that protects. If it is a building, it protects the foundation. Okay, so pillars are, if we can say, it's a foundation that protects the building. Okay, अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो हमको फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो फाउंडेशन कौन देता है? अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज गिवन बाय द पिलर्स. पिलर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच सपोर्ट्स द whole building. Same way the nation, अगर मुझे नेशन को बनाना है तो who are the pillars? Pillars are none other than we the people. We the people of India are the main pillars which can help to make our nation developed. अब pillars of democracy बोला है. Democracy we all know, student, from our school timing we are studying that what do you mean by the term democracy. Democracy we all know, by the people, for the people, of the people. It means center is the people. People plays a very important role. People, if you would see, we human being, every 5 years we can see that there is a election and we nominate, we vote to our favorite candidate, and that person becomes or being elected and becomes the nation's prime minister, and that prime minister rules for 5 years. तो ये आप देखोगे स्टूडेंट, ये चीज़ हम आज सीखने वाले हैं. अ नेशन बिल्डर, अ पर्सन हु इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. हमारे नेशन के संविधान किसने लिखा है? नन अदर देन बाबा साहेब आम्बेडकर, और पॉपुलरली नोन एज भीमराव रामजी आम्बेडकर. और हम सब के मुंह पे एक ही नाम है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, एंड दैट इज़ बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनको हम बहुत वे से याद करते हैं. ही इज़ रिमार्केबली नोन एज इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, हु इंस्पायर्ड एवरीवन. हर एक इंसान को, हमारे नेशन के हर एक पर्सन को उन्होंने इंस्पायर किया अपने नॉलेज से, अपने वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, और जस्टिस जो लोगों को उन्होंने दिलाया. जब उन्होंने देखा कि समाज में इतना इनइक्वालिटी है, so much of inequality was there. In order to eradicate the inequality, he played a very important role, and that is why he became B.R. Ambedkar. Normally, उन्होंने बहुत कुछ किया है, and my words are less if I speak about him, but still I will speak about him because he had done, especially played a very important role in the Dalit Buddhist movement. दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट में उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया. ही कैंपेन्ड अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन. जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ब्राह्मण्स और क्षत्रियो और शूद्र में एक टाइम था जब होता था, लोअर कास्ट में, अपर कास्ट में, वो कास्टिज़म को हमारे नेशन से रूट आउट किया, और जो अनटचेबल्स जिनको हम कहते थे उनको उनका राइट दिलाया, लाइक द अपर कास्ट. सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ड्राफ्टिंग कमिटी. वो उन्होंने संविधान बनाया और वो कमेटी के हेड थे. ही वॉज अ जीनियस par excellence, an economist, a socialist against the social injustice. जो भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होता था उसके लिए वो हमेशा खड़े हो जाते थे. मैं एक प्रॉपरली कह सकती हूँ कि वो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे. यस. सो without wasting time, let's move on to the slide what we are going to study today. Today, student, we are going to study about, in this slide it is listed properly. Firstly, we are going to see 1.4 pillars of democracy, introduction of the chapter. इस chapter का पहले हम introduction देखेंगे. Secondly, we are going to see about the writer and the chapter, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है.
Thirdly, we are going to see summary of this chapter, and lastly, we are going to start with line by line explanation of this chapter. So without wasting time, let's see introduction of this chapter. The extract, ये जो चैप्टर अगर आप देखोगे, ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है was an appeal by डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. हम सबको उन्होंने एक अपील किया है. When the country was on the verge of becoming a democratic, जब हमारा नेशन का संविधान बन के तैयार हो गया था और हम डेमोक्रेटिक होने वाले थे, वो टाइम पे उन्होंने एक स्पीच दिया. और वो स्पीच उन्होंने नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सबके सामने ये एक लास्ट स्पीच दिया था अबाउट आवर डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने हम लोगों को सिखाया और समझाया डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस क्या होता है. ही बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी विल बी वन ऑफ दैट ट्रम्प्स. अगर हम लोगों को सबके ऊपर वी हैव टू विन, तो विन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हमको 3 थिंग्स याद रखना है. लिबर्टी, ओके, दैट इज़ वी हैव टू बी फ्री, नो बाउंडेजेस वुड बी देयर फॉर एनी वन इन देयर लाइफ. सेकेंड इज इक्वालिटी, ऑल शुड एन्जॉय द राइट्स. जितने भी हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले हैं, all constitution rights would be utilized and you can see understood by each and everyone in a equal way. Fraternity, थर्ड क्या बोला है, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, इट मीन्स ब्रदरहुड. वी शुड हैव द थॉट ऑफ ब्रदरहुड इन आवर सेल्फ. ओके, हम लोगों में मतलब एक दूसरों को हेल्प करने का एक भावना जो रहना चाहिए. अगर ये सारे थिंग्स हमारे नेशन में हर एक पर्सन सोच के समझ के चलता है, देन डेफिनेटली वन डे वी कुड से इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू सर्वाइव. और हमको अपना कंट्री वैसे ही कन्वर्ट भी करने का है. Next, you can see he is also saying, he also warned our countrymen about the danger of the hero worship and social you can see inequality. हमारे nation में if you would see there is lots of social inequalities there. Okay, like casteism is there. Okay, so casteism को उन्होंने root out करने के लिए he played a very important role. And once most important thing that he also played, that is hero worship should not be there. hero worship मतलब होता है dictatorship, means एक person ही rule करते ही जा रहा है. So that's why he had made the constitution where he brought the democracy, where every 5 years you can see there is a election and we all human being will vote, and thus the person we all जो हमने वोट किया है, हमारा ही पर्सन अगर आप देखो तो वहाँ पे जाके नॉमिनेट होता है और वही पर्सन रूल करता है. तो ये चीज़ उन्होंने रिप्रेजेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और आज वो वही चल रहा है. सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट बाबा साहेब आम्बेडकर हैड ब्रॉट अप. ये उन्होंने जो चैप्टर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इफ़ यू विल सी, this was the warning in his last speech of the Constituent Assembly resonant that he had done. और इन्होंने ये नवंबर 24, 1949 को सबके सामने रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने सबसे ज़्यादा खतरा क्या बताया था, ग्रामर ऑफ एनार्की. ग्रामर ऑफ एनार्की मतलब जहाँ पे आप देखोगे स्टेट वेयर नो लॉज आर देयर, नो डेमोक्रेसी इज देयर, नो जस्टिस इज देयर, जहाँ पे लॉलेसनेस हो चुका है, मतलब कहीं बिल्कुल भी संविधान का कोई पूरा लॉ जो है कोई मानता ही नहीं है, टोटल डिसऑर्डर हो गया, फेल्यूर ऑफ गवर्नमेंट हो गया है. इस चीज़ से डर बताते हुए कि हमारे नेशन को इस चीज़ का खतरा है, उन्होंने ये असेंबली में लास्ट एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने वार्निंग दिया था कि अगर हम सब ये डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं और अगर हम अभी से नहीं समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ ग्रामर ऑफ एनार्की विच इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द नेशन, और अगर ये समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते तो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर ओन नेशन.
उसके बाद जाके आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, वेयर वी हैड स्टार्टेड फॉलोइंग ऑल आवर राइट्स एंड टुडे विथ बिकॉज ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वी कैन से that today we are getting the full rights, we are utilizing our democracy, okay, and we are utilizing our you can see very important thing, that is law. हमारे पास लॉ है एंड वी आर हैविंग द जस्टिस, हमें हर जगह पे जस्टिस मिल रहा है, हर 5 ईयर्स पे हम वोट करते हैं, तो ये सब थिंग्स हमारे लिए रिप्रेजेंट हुआ सो दैट हम वी कैन ऑल्सो एन्जॉय द इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये आप देखोगे पूरे चैप्टर में हमको सिखाया है, और उन्होंने इसमें एक वार्निंग भी दिया है, 3 वार्निंग्स दिए हैं एक्चुअली, और वो हम सीखेंगे through this chapter. So let's move on to the about the writer and the chapter. Now please see on page number 36, Dr. Baba Saheb Ambedkar. About the writer and the chapter we will see. Dr. Baba Saheb Ambedkar, I think he do not require any introduction. So was born on 14th April 1891 in town and military cantonment of Mehau. Now Dr. Ambedkar नगर उसको कहते हैं, इन मध्य प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, महाव में, मध्य प्रदेश में, जो कि अब आम्बेडकर नगर के नाम से बहुत फेमस है। 14 अप्रैल हमको मालूम है उनका बर्थ डे है, 1891। ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम एलिफेस्टन कॉलेज मुंबई, एलिफेस्टन कॉलेज मुंबई से उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया। ही subsequently obtained the doctorate from कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे पढ़ने के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आगे की स्टडीज़ उन्होंने कंप्लीट की। सिर्फ कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से ही नहीं किया, बट ऑल्सो ही वेंट टू द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर ही हैड डन द ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ओवर देयर, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम देयर he had done the PhD, and that's why he become the he got the doctorate degree over there, so that's why we call him as Dr. Baba Saheb Ambedkar. It means he was a highly intellectual person, बहुत ही ज़्यादा वो जो बोलते हैं ना नॉलेजेबल पर्सन थे, और उनको बहुत नॉलेज इकट्ठा करने का बहुत शौक था। ही स्टडीज़ अ लॉट एंड हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज। ही वॉज अ voracious reader, and that's why he is very popular. He was also assigned the big and the challenging task of framing the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनको एक बहुत डिफ़िकल्ट काम दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम, और वो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एंड ही वॉज द लॉ मेकर। उन्होंने पूरे टाइम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, और आज हम इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस राइट्स यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ द क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सर। इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। ही हैड रिटन फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथों से पूरा संविधान लिखा, and such a beautiful handwriting that this person was having, and he had written it with his full knowledge, full day, full night. He had worked for making our Indian constitution. He was awarded the Bharat Ratna आफ्टर द डेथ, दैट इज़ पॉस्टमसली, इफ़ यू वुड सी, डेथ के बाद उनको ये भारत रत्न मिला फॉर हिज डेडिकेशन एंड कमिटमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री, हमारे नेशन के डेवलपमेंट, एंड यू कैन सी डेवलपमेंट, एंड यू कैन सी फॉर डेडिकेशन एंड द वर्क दैट ही हैड डन, दैट ही हैड इरेज्ड द इनइक्वालिटी इन आवर नेशन। फॉर दैट ही गॉट द भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ। अब अबाउट द चैप्टर पे आ जाओ। ये चैप्टर में क्या बोला है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज़ लेड मीन्स प्रेजेंटेड एम्फोसिस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। पूरे चैप्टर में आप देखोगे ना, उनके जो 3 वैल्यूज़ थे, जिसको आप पिलर्स बोल सकते हो, वो 3 चीज़ क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड fraternity. Liberty, we all know, we require the freedom. Equality, it means we all are equal in front of constitution. Constitution ही सब कुछ है और उसके सामने हम सब equal हैं. Fraternity means brotherhood, sisterhood, means we all are equal and there is no differences among we all human being. According to Baba Saheb Ambedkar,
These principle will make India a strong nation. उनके हिसाब से अगर ये सारे प्रिंसिपल्स अगर हम नेशन में, इंडिया नेशन में फॉलो करते हैं तो हमारा नेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है और डेवलप भी हो सकता है. He opines, it means he is of the opinion that hero worship is a sure road to degradation. उनके हिसाब से, और ये रियलिटी भी है, ट्रुथ भी है, कि अगर हम लोग हीरो वर्कशिप करते हैं, हीरो वर्कशिप मतलब होता है एनार्की, एक ही पर्सन, डिक्टेटरशिप मालूम है ना, एक ही पर्सन को रूल करना, एक ही पर्सन बहुत साल से अगर रूल करता रहेगा तो ये पूरा डिग्रेड हो जाएगा हमारे नेशन का, जो बोलते हैं नेशन का डेवलपमेंट, इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय. ओके, देयर इज़ नो जस्टिस वी आर गोइंग टू गेट, देयर इज़ अ लॉलेसनेस विल हैपन. ठीक है, डिसऑर्डर, फुल सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा. तो ये उनका कहना था. एंड टू इवेंचुअली डिक्टेटरशिप, और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, डिक्टेटरशिप. मालूम है डिक्टेटरशिप क्या होता है, एक ही पर्सन रूल करता है और उसके रूल में आप बिल्कुल भी इक्वल नहीं रहोगे, बिल्कुल भी यू कैंट यूटिलाइज एनी लॉ, नो लिबर्टी, नो इक्वालिटी, नो फ्रेटर्निटी वुड बी देयर, नो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज देयर वेयर यू कैन वोट और एनीथिंग यू कैन डू. ठीक है, तो ये सारा आप देखोगे इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर. एंड ही इज वार्निंग अस दैट स्टॉप द हीरो वर्कशिप और डिक्टेटरशिप बिकॉज इट इज गोइंग टू कोलैप्स द नेशन. अगर डिक्टेटरशिप रहेगा हिटलर जैसे तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल कोलैप्स हो जाएगा नेशन. ओके, नेशन विल नेवर एवर डेवलप. आप साउथ कोरिया वगैरह का एग्जाम्पल स्टोरीज देखते ही हो, वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स वो लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे, और चाइना का कंडीशन आप देख ही सकते हो. तो अगर आप डेमोक्रेसी रियल यूटिलाइज करना है तो टेक द हेल्प ऑफ, टेक द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द USA, which is a pure democratic nation, and we Indian are also a pure democratic nation. And आज जब हम democratic nation बने हैं, so एक तो मैं बोल सकती हूँ that the credit goes to B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, who played a very important role to make the constitution and makes us realize that the importance of equality, fraternity, and you can see most important is liberty, and that laws had helped us to order the everything system in our nation. So आज गवर्नमेंट इतना अच्छा चल रहा है और anything which is happening, it is only credit goes to the डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सर. तो ये था हमारा अबाउट द राइटर एंड द चैप्टर. लेट्स मूव ऑन टू द समरी ऑफ द चैप्टर. Summary of the chapter, if you would see, on November 1949, Dr. B.R. Ambedkar spoke on the need to give the importance to liberty, equality, and fraternity, and give up. What to give up? Give up the grammar of anarchy. Grammar of anarchy अभी मैंने सिखाया आपको. It means where there is no democracy, where there is no justice, where there is no equality, and to avoid the hero worship, and to work towards the social and democratic way. लोगों को उन्होंने सिखाया कि अवॉइड करो हीरो वर्कशिप, छोड़ दो ग्रामर ऑफ एनार्की मतलब जो तानाशाह बोलते हैं, और सोशल और पॉलिटिकल वे जो है उसको ज़्यादा ना पकड़ के डेमोक्रेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना was the last speech, we can say, of Dr. B.R. Ambedkar at Constitutional Assembly he had proposed to us. So after that, 26 January 1950, finally you can see India became independent. We all celebrate it as a Republic Day, and that day the constitution written by our B.R. Ambedkar sir was being implemented all over the country. The first thing that B.R. Ambedkar had said in this chapter, and as he had said in that Constitutional Assembly, is that चलो वो टाइम पे होता था कि सत्याग्रह होते थे, you know, agitations were there, like so many you can see civil disobedience movement was there, quit India movement was there. It was required for the nation's freedom के लिए ज़रूरी था. पर अब जब हम फ्रीडम मिल गया है तो अब हमको ग्रामर ऑफ एनार्की में नहीं रहना है. इट मीन्स तानाशाह.
इस चीज़ से हमको दूर भागना है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू किल द नेशंस डेवलपमेंट। उन्होंने आगे एग्जाम्पल्स भी दिया, और एग्जाम्पल्स उन्होंने किसका दिया? जॉन स्टुअर्ट मिल, हु इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। उनका एग्जाम्पल दे के हम लोग को प्रेजेंट किया दैट नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ ऑनर। किसी भी ह्यूमन मैन के लिए उसका रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक विमेन के लिए उसका प्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक नेशन को इम्पॉर्टेंट तब बनता है जब वो नेशन फ्री है। फ्री मीन्स नेशन के लोग जो है वो फ्री फील करते हैं। ये थिंग्स को उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद उन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या बताया कि हमको हमारे नेशन से जो भक्ति वर्कशिप था ना, हीरो वर्कशिप, उसको निकालना पड़ेगा। जहाँ पे आप एक ही पर्सन को इम्पोर्टेंट समझो, जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री में किंग एंड क्वींस वर देयर, अकबर, बीरबल और मुगल डायनेस्टी, सो मेनी डायनेस्टीज वर देयर, देखा होगा आपने, जिसमें एक ही पर्सन रूल करता था एंड देयर इज ओनली वन पर्सन इज गिविंग द डिसीजंस एंड वी ऑल ह्यूमन बीइंग हैव टू फॉलो। ये चीज़ को उन्होंने कहा इट इज़ गोइंग टू कॉल एज डिक्टेटरशिप। इसको ही डिक्टेटरशिप कहते हैं, और ये जो है इट इज़ गोइंग टू डिग्रेड द नेशंस डेवलपमेंट। यही चीज़ हमारे नेशन के डेवलपमेंट को ख़त्म कर सकती है। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी ही सेड दैट वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ वन मैन वन वोट। एक हमको इम्पॉर्टेंट थिंग क्या सिखाया कि हर एक पर्सन को, इसलिए हमारे नेशन में क्या आना ज़रूरी है, एक इंसान को एक वोट देना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप देखोगे हमारे नेशन में जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, एवरी 5 years देयर इज़ अ इलेक्शन एंड देन वी नॉमिनेट, वी ऑल गो टू इलेक्ट, वी वोट एंड दस दैट पर्सन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ अगर आती है हमारे नेशन में, देन वी कैन सी दैट द पर्सन दैट वी रिक्वायर, दैट पर्सन इज़ रूलिंग द नेशन। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये अगर ऐसा रहेगा तब हम कह सकते हैं कि हमारा नेशन डेवलप हो रहा है और इक्वल राइट्स हमको मिल रहे हैं, कि हम जैसे लोगों का भी सुना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे उन्होंने इंपॉर्टेंस बताया है फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ कंट्री। हम सब में एक भाईचारा का भावना होना चाहिए। वी ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, देयर इज अ बॉन्ड ऑफ वननेस इज देयर। और अगर हमें बॉन्ड ऑफ वननेस है ना, देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। तभी हम आगे नेशन को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम लोग इंटरनली झगड़ा करते रहेंगे तब कब डेवलप होंगे? और इंटरनली व्हेन वी फाइट ऑन द नेम ऑफ सोशल इनजस्टिस लाइक कास्टिज्म, रिलीजन, ये छोटी छोटी बात पे हम जब झगड़ा करते हैं, रिलीजन लाइक अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ओके, कास्टिज्म, ब्राह्मणिज, ये सब है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऑल 4 वर्नास वर देयर। ये सारी थिंग्स हमारे नेशन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ठीक है, रिलीजन है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, व्हाई वी आर फाइटिंग अमंग अस? वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ओके, सो वी हैव टू बाउंड द सोसाइटी एंड इफ वी आर बाइंडिंग इट देन ओनली आवर सोसाइटी, आवर नेशन वुड बी स्टेबल। आपको पता होना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, ब्रेस जो कि एक राइटर है बहुत बड़े, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च में एक पोप थे। उन्होंने जब प्लेज लिया था तो उन्होंने ऐसा बोला, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। ये उन्होंने स्टेटमेंट बोला था फर्स्ट टाइम। नेशन मतलब, बाद में उन्होंने इस नेशन वर्ड को ड्रॉप किया और इस जगह पे यूज़ किया, लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड नेशन। अमेरिका में आप देखोगे एक पर्सन ने जब वहाँ पे ओथ लिया तो उन्होंने एक बार बोला था, लॉर्ड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद से आप देखोगे प्रेसिडेंट जब भी उन लोगों का इलेक्शन होता है, जब भी उनका ओथ रहता है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है, लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब सारे यूनाइटेड स्टेट्स के पीपल को ब्लेस करो गॉड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो सेम वे हमको भी ये समझना चाहिए, वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका में आप देखोगे कास्टिज्म है ही नहीं, तो क्यों ना हम अपनी कंट्री इंडिया को भी विदाउट कास्टिज्म बना दें। ठीक है, तो यही आप देखोगे लास्ट में उन्होंने बोला है, बी आर अम्बेडकर ने, दैट वी हैव टू रूट आउट
root out the casteism, religion, all things which are present in our nation. और अगर एक बार ये निकल गया ना कास्टिज्म का प्रॉब्लम, आप भी देखोगे कि फील करोगे दैट आवर कंट्री वुड बी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर वी आर यूटिलाइजिंग ऑल आवर राइट्स एंड वी आर ऑल्सो डेवलपिंग. सो ये डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे इट इज़ यू कैन सी डिफ़िकल्ट पेबल्स की तरह चुभ रहे हमको कास्टिज्म. तो हमको ये समझना है कि हमको अगर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अगर हमको इस नेशन में लाने का है तो वी हैव टू टेक आउट द कास्टिज्म प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर नेशन. ये हमारा एक शॉर्ट समरी हो गया ऑफ दिस चैप्टर. Now let's start line by line explanation of this chapter. Before starting, I will give you the glossary of words and their meaning. So please see the slide and if possible write in your notebook so that or in your text book में लिख के वर्ड जो हार्ड आ रहे हैं तो लिख के रखो तो आपको हेल्पफुल रहेगा. फर्स्ट इज abundant, it means to give up a place, okay, thing or an idea. सेकेंड antipathy मतलब होता है strong feeling, dislike or opposition. Chastity means purity. Cherishing means protecting or caring for something. Constitutional means related to the principles governing a state. Next is contradictions. It means something being complete opposite, different thought. Next is convention. It means a large meeting or conference. Next is creed. Creed मतलब होता है set of belief that influences one's way of life. लोगों के सोच जो बिलीफ जो इंसान के लाइफ को चेंज करते हैं. डिग्रेडेशन मीन्स होता है कॉज समथिंग टू वर्सन इनक्वालिटी, बर्बाद कर देना जिसको कहते हैं. डेल्यूशन मीन्स बिलीव इन समथिंग फॉल्स और लाइक, गलत चीज़ पे विश्वास करना. डिक्टेटरशिप अ स्टेट ऑफ बीइंग रूल्ड बाय सिंगल पर्सन विद टोटल पावर. एक ही इंसान तानाशाह जैसे रूल करता है. हिटलर सबको मालूम है. चलो. एमिनेंट मतलब होता है रिस्पेक्टेड और इम्पॉर्टेंट पर्सन. नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड एंड सपोर्ट. ठीक है. ग्रामर ऑफ एनार्की, देखो मीनिंग दे दिया मैंने. अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकग्निशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम. ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, इंडेप्टेड. ठीक है. हीरो वर्कशिप मतलब क्या होता है? एक्सेसिव एडमायरेशन फॉर समवन, किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का मतलब हीरो वर्कशिप हो गया. ठीक है, जो कि डिक्टेटरशिप में आता है. नेक्स्ट इज लेबरसली मतलब रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. ठीक है, बहुत मेहनत करना. लिबर्टी मतलब फ्रीडम. ओके. इंटरगी मतलब होता है राइट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीजियस पब्लिक वर्कशिप. ठीक है, कोई भी राइट्स हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो रिलीजियस पब्लिक वर्कशिप के लिए. मैग्नीट्यूड मतलब द इनॉर्मिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, कितना हद तक जा सकता है, मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो जैसे बोलते हैं हीरो वर्कशिप अगर ज़्यादा देर तक गया तो हमारा नेशन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर हीरो वर्कशिप हैज़ द स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय. ये मीनिंग हुआ. पेट्रियट. पेट्रियट मतलब होता है पर्सन हु सपोर्ट्स, फाइट फॉर द नेशन. ठीक है. पेरल. पेरल मीन्स डेंजर, मालूम है. रेंडर्ड मतलब कॉन्ट्रीब्यूटेड, मेक अवेलेबल. ठीक है. रिसेंटेड मीन्स फील एंगर. ओके. सेल्वेशन यहाँ पे मीनिंग है सेविंग अ स्पिरिट फ्रॉम एविल. ठीक है, नेशन को एविल थिंग से वी हैव टू सेव. सॉलिडेरिटी. सॉलिडेरिटी मीन्स अ म्यूचुअल सपोर्ट अमंग पीपल विथ सेम इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज सबवर्ट मीन्स डिस्ट्रॉय, डैमेज समथिंग. और लास्ट क्या है? टेरिनियल. टेरिनियल मतलब क्या होता है? रिकरिंग एवरी 3 years, 3 साल में. ठीक है, तो ये हमारा वर्ड मीनिंग हो गया. प्लीज़ राइट डाउन और जैसे जैसे वर्ड्स हमारे टीचिंग में आएंगे आपको हेल्पफुल रहेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. 36 पेज नंबर. Pillars of democracy, first para. If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? अगर हम लोग को डेमोक्रेसी रियली नेशन को डेवलप करना है तो क्या करना है? What we should do? The first thing in my judgment, it means B.R. Ambedkar, who is the writer, is saying, first thing हमको क्या करना है? In my judgment, according to B.R. Ambedkar's way of talking, we must do to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. हमको जो नेशन में सोशल और
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, मेन थिंग्स, उस पर ना बहुत वर्क हार्ड करना है। सोशल इट मीन्स समाज में जो गलत चीज़ है उसको रूट आउट करना है, और इकोनॉमिकल भी। दो चीज़ अगर स्ट्रांग है ना तो नेशन डेवलप हो सकता है। When there was no way left for constitutional method for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods। और सोचो, थिंक स्टूडेंट्स, अगर एक नेशन में सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, मतलब जहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ कोई भी जस्टिस, नो डेमोक्रेसी इज देयर, नो लॉ इज देयर, नो लॉ फॉलोइंग इज देयर, सोचो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हो गया। इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द नेशंस डेवलपमेंट। नेशन पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। ये बोला है हमारे BR अम्बेडकर सर ने। बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स आर ओपन, पर हमको ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू डू इट। सो देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। मतलब अगर नेशन को डेवलप करना है ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को चांस ही मत दो कि वो डेवलप हो। मतलब सोशल इनइक्वालिटी है, लाइक कास्टिज्म है, इसको तो सोचो ही मत, रूट आउट कर दो, ठीक है। और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आप देखोगे फार्मर्स का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करो फॉर द नेशंस डेवलपमेंट। दीज मेथड्स आर नथिंग बट द ग्रामर ऑफ एनार्की। अगर हमारे नेशन में सोशल इनजस्टिस हो रहा है, पीपल को उनका राइट्स नहीं मिल रहा है, इट मीन्स हमारे नेशन में एक बड़ा डिसऑर्डर प्रॉब्लम आ गया, एंड दैट इज़ ग्रामर ऑफ एनार्की, मतलब तानाशाह, डिक्टेटरशिप। A state of disorder, grammar in anarchy is a very important term. It means meaning is given a state of disorder ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकग्निशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम। हमारा नेशन उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा अगर कास्टिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है। तो इसलिए आप बोला है कि कास्टिज़म को अब टाइम आ गया है कि बाय बाय बोलो, एंड नो कास्टिज़म वुड बी देयर इन आवर सोसाइटी। और अगर नहीं रहेगा देन ओनली आवर नेशन वुड बी डेवलप्ड, एंड द सूनर दे आर अबंडेंट द बेटर फॉर अस। जितना जल्दी एबंडेंट मीन्स गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एबंडेंट मीन्स इफ़ इट इज़ रूट आउट हो जाएगा, उतना जल्दी हमारा नेशन डेवलप हो सकता है। दैट इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑल अबाउट। Second para, if you would see, the second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert. Underline the word subvert. Subvert यहाँ पे meaning है to destroy or damage the institution। क्या बोला है स्टूडेंट यहाँ पे अटेंशन करो। द सेकेंड थिंग जो BR अम्बेडकर सर हम लोगों को समझा रहे हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर का एग्जाम्पल दिया है, उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कहा था, ही हैड सेड कि अगर हमको डेमोक्रेसी मेंटेन करना है तो व्हाट इज़ रिक्वायर दैट लिबर्टी को किसी के भी पैर के नीचे आने मत दो। Never bring the liberty at the feet of any of the human being, however that human being is very great and smart। कितना बड़ा इंसान रहने दो, लिबर्टी उसके पास मत जाने दो, क्योंकि अगर उसके पास गया तो फिर आप देखोगे कि डिक्टेटरशिप चालू हो जाएगा। लिबर्टी इज समथिंग दैट वी ऑल ह्यूमन बीइंग कैन एंजॉय, and it is done only when there is election where all we people vote and that person being elected। So never trust any of the person, okay, और trust करना है तो it is well said to trust him with powers even enable him to subvert their institutions। ऐसा बोला है कि अगर आप ग्रेट मैन को ऐसा समझते हो कि यही सब कुछ है, इसी पे पूरा ट्रस्ट करते हो, तो उसी दिन आप सोचो कि आपका नेशन डिस्ट्रॉय होने वाला है। आपने देखा होगा एनी ऑफ द डायनेस्टी, कोई भी डायनेस्टी चली नहीं, मुगल डायनेस्टी, एनी ऑफ द डायनेस्टी, इफ यू वुड सी तुगलक डायनेस्टी, so many dynasties you had seen, not a single dynasty was very popular। Why? It was not there for more than years। The reason is because there was a hero worship, because there was great man, कोई सब लोग सब समझता था, तो वो ही लिबर्टी का मिसयूज़ होने लगा, और मिसयूज़ से आप देखोगे पूरा इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय हो गया। सो इसलिए यहाँ पे बोला है कि
कोई भी ग्रेट मैन है उसके हाथ में पूरा राइट नहीं मिलना चाहिए। ये राइट किसका है? ह्यूमन बीइंग, वी ऑल पीपल का, हम सबका राइट है। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में हैं तो हम सबका ये राइट है कि हम सब एंजॉय करें, not one person, not any one person, we all should enjoy this process, and thus we can make the good nation. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered means contributed or made available lifelong services to the country, but there are limits to the gratefulness. बी आर अम्बेडकर सर बोल रहे हैं मैं अच्छे लोगों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग थे, ओके, लाइक यू कैन सी, आपने हमारे हिस्ट्री में देखा होगा, देयर आर सो मेनी गुड पीपल आर देयर, महाराणा प्रताप वाज, उनका फुल डायनेस्टी सोचो, ठीक है, वो भी एक टाइम पे खराब हो, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इतना बड़े बड़े डायनेस्टीज़ को आपने रूल करते देखा है और उनका आपने डिस्ट्रॉय होते हुए भी देखा है अपने आँखों से। तो इट इज़ नॉट दैट द ग्रेट मैन आर इम्पॉर्टेंट, ग्रेट मैन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशंस डेवलपमेंट, बट एट वन लिमिट, एक टाइम तक, कुछ टाइम के बाद वो दूसरे पर्सन को गिव दम द रूल, ओके, एज हैज़ बीन वेल सेड बाय आयरिश पेट्रियट डैनियल ओ कॉनन। एक आयरिश पेट्रियट का फिर से मैंने कहा ना, बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट रीडर, बहुत सारे बुक्स वो पढ़ते थे, तो उनके पास बहुत सारे थिंग्स थे कोट करने को, एग्जाम्पल देने को, ठीक है। तो उन्होंने, और एक बहुत बड़े ग्रेट राइटर आयरिश पेट्रियट मतलब जो देशभक्त होते हैं, उनका एक एग्जाम्पल दिया है, डैनियल ओ कॉनल। नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर। एक आदमी के लिए, एक मैन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रिस्पेक्ट। आप अगर एक मैन को रिस्पेक्ट करोगे, दैट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फील वेरी ग्रेटफुल। एक विमेन के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है? चेस्टिटी। अंडरलाइन द वर्ड चेस्टिटी, इट मीन्स प्योरिटी, मॉडेस्टी, ओके, द वे शी इज़, ओके। आप अपने मदर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? अ प्योर लेडी, प्योर फ्रॉम द हार्ट, प्योर फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। तो एक विमेन को हम कैसे, मदर को कैसे आप रियलाइज़ करते हो, समझते हो कि वो एक प्योर पर्सन है जिससे आप अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, शी इन अ मिनट क्लियर आउट ऑल योर ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो वो हो गया एक प्योरिटी। सेम वे नेशन को अगर मुझे ग्रेटफुल बनाना है ना, सो व्हाट वी रिक्वायर इज़ लिबर्टी। नेशन को डेवलप करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज़ द लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लिबर्टी इट मीन्स फ्रीडम, वी रिक्वायर द फ्रीडम। ह्यूमन बींग, सारे नेशन के जितने भी कंट्री मैन हैं, इंडिया कंट्री मैन को लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी बनाना, फ्री करना, वेरी इंपॉर्टेंट। This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, bhakti, or what may be called the path of hero worship, plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country इन द वर्ल्ड। यही चीज़ बाबा साहेब आम्बेडकर हमको समझा रहे हैं कि अगर ये चीज़ रहता है ना हमारा, तो हम नेशन कंट्री इंडिया में बहुत डेवलप कर सकते हैं। बट हमारे नेशन कंट्री इंडिया में क्या चीज़ है पता है? भक्ति है। भक्ति मीन्स डिवोशन। हम एक पर्सन को फुल्ली डिवोट करके बैठ जाते हैं, ठीक है। हीरो वर्शिप मीन्स एक्सेसिव एडमायरेशन फॉर समबडी। एक ही पर्सन है जो रूल कर रहा है और हम उसके ही अंडर काम करते जाते और वो हमको एक्सप्लॉइट करते जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर रहेगा तो नेशन कब भी डेवलप नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय और डिग्रेड। और अगर ये चीज़ हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आ गया तो नेशन ज़रूर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको कहते हैं तानाशाह। और ग्रामर ऑफ एनार्की, वही वो सिखा रहा है और समझा रहा है कि कभी भी नेशन में ना ग्रामर ऑफ एनार्की मत होने देना। मतलब एक ही पर्सन 100 साल से रूल कर रहा है, एक ही पर्सन 50 साल से रूल कर रहा है, तो वहीं पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेट द अदर पीपल गेट द इम्पोर्टेंस। हाँ, इलेक्टेड पर्सन अगर बन रहा है तो इट इज़ गुड। अगर आप इलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, एक ही पर्सन को एडमायर कर रहे हो, हीरो वर्शिप कर रहे हो, समझो नेशन का डेवलपमेंट बहुत प्रॉब्लम में होने वाला है। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, ओके।
In the next lecture, we will complete the remaining line by line explanation of the chapter. Till then, read the chapter very carefully because it's a very important chapter and little bit difficult to understand. But I think my teaching made you understand this chapter more easier. And write down the hard words in your notebook and enjoy learning. This is Garimami signing off. Stay home, stay safe.